Hello students. In last lecture we have discussed about some of the concepts related to the heredity variation, about the structure of DNA, RNA. Let us study some more concepts and related questions. Question number first is question number first DNA and RNA, they are similar in having DNA and RNA, they are similar in having DNA and RNA are similar in being डीएनए और आरएनए में क्या सिमिलर होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर सिमिलर प्यूरिन, सिमिलर शुगर्स, सिमिलर प्यूरिन्स, सिमिलर शुगर्स, both are polymers of nucleotide, C, both are the polymers of nucleotide, and option D is both are double stranded, both are डबल स्ट्रैंडेड, दोनों भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। सो इट इज आस्क्ड दैट डीएनए एंड आरएनए दे आर सिमिलर हैविंग। तो डीएनए और आरएनए में क्या सिमिलर होता है, प्यूरिन सिमिलर होते हैं क्या। तो जैसे डीएनए अगर है तो इसमें कौन से प्यूरिन होंगे, और आरएनए अगर है तो इसमें कौन से प्यूरिन होते हैं। सो प्यूरिन्स इन डीएनए आर ए एंड टी, सॉरी जी, क्या होते हैं इसमें, ए एंड G are the purines present in DNA. RNA has U and C. These are the purines. Uracil instead of T, thymine. ठीक है। सो ए जी इसमें होते हैं, और आरएनए में जो प्यूरिन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, जी होता है इसमें। उसके बाद एडेनाइन भी होता है, ठीक है। सो ए जी and U is present in the RNA. Then in similar in sugars. So here sugar is deoxyribose sugar. deoxyribose sugar होता है इसमें, और इसमें जो होता है वो होता है राइबोज शुगर। क्या होता है इसमें, राइबोज शुगर। Then both are both are polymers of nucleotides. So yes, DNA is also polynucleotide and RNA is also polynucleotide, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं आते हैं, इससे हमें समझ में आता है कि ये दो ऑप्शन इनकरेक्ट है। बट बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। बोथ आर डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये भी आंसर, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second is anticodon is a base triplet on, is a base triplet on, एंटीकोडॉन इज अ बेस ट्रिपलेट ऑन। एंटीकोडॉन किस पे प्रेजेंट होता है, जो बेस का ट्रिपलेट होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज mRNA complementary to base sequence of rRNA. So it is present on mRNA complementary to the base sequence on rRNA, ठीक है। Second option given is option B is it is rRNA complementary to base sequence of
tRNA. rRNA complementary to the base sequence on tRNA. tRNA के बेस सीक्वेंस से ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है और rRNA पे प्रेजेंट होता है, ऐसा ही ऑप्शन कहता है. ऑप्शन बी. ऑप्शन सी इज it is present on tRNA and it is complementary to sequence on rRNA. tRNA and it is complementary to the sequence on rRNA. rRNA के सीक्वेंस से ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है. एंड ऑप्शन डी इज it is present on tRNA and complementary to base sequence tRNA and it is complementary to base sequence on mRNA. mRNA से वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है. So anticodon is a base triplet which is present on. So we know that anticodon, it is the base sequence which is present on what? So it is present on, यहाँ पर एंटीकोडन होता है और ये है tRNA. ये क्या है? tRNA. tRNA पे यहाँ पर क्या होगा? ये एंटीकोडन प्रेजेंट होता है. And this anticodon is complementary to the sequence present on mRNA that we have studied in transcription process, translation process. ट्रांसलेशन प्रोसेस यानी प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें हमने ये स्टडी किया है कि tRNA carries the amino acid. tRNA carries amino acid to this end. When it carries amino acid to mRNA, it has an anticodon sequence on this loop, and this anticodon sequence is complementary to the sequence of triplet. जैसे कि for example this sequence is ACC. Then the anticodon which is present on tRNA, it would be, ये A है तो ये होगा U, ये C है तो ये G और ये भी G होगा. So UGG, it is anticodon. ये क्या है? Anticodon. And this is codon on mRNA. So anticodon is present on, it is a base triplet present on tRNA. तो यहाँ पर हमें ऑप्शन tRNA यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दिया है. But this sequence is complementary to the sequence on not rRNA but mRNA. So it is complementary to base sequence on mRNA. So option D is the correct answer. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Peptide synthesis found inside the cell organelles are. Question is, the peptide synthesis, that is the protein synthesis, it occurs in which cell organelles inside the cell. Cell में कौन से organelles होते हैं जिसमें ये peptide synthesis होता है? Question number 3 is peptide synthesis. It is found in the cell organelle are found inside the cell organelles are, वो कौन से है जो कौन से सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें पेप्टाइड सिंथेसिस होता है? ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स. गिवन ऑप्शन आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सी vacuoles,
and option D is both A and B. इसमें से कौन सा है कि जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस पेप्टाइड सिंथेसिस होगा? So we know that mitochondria has DNA. It has its mitochondrial DNA. It is semi-autonomous organ. Chloroplast is again a semi-autonomous organ. It has its own DNA. दोनों के पास खुद के डीएनए होते हैं, इसका मतलब उनके जो प्रोटीन्स है वो खुद क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं. So most of the proteins of mitochondria and chloroplast they are synthesized in their matrix. उनका जो मैट्रिक्स होता है उसमें ही उसका सिंथेसिस हो जाता है because they have their own DNA. So both chloroplast and mitochondria can synthesize the proteins or peptides. So both A and B option is correct. Question number 4. Next question, question number 4. Question number 4 is mRNA is synthesized on DNA in which direction? So mRNA is synthesized on DNA in which direction? कौन सा डायरेक्शन होता है इसके सिंथेसिस का? On which direction does the mRNA synthesis takes place? Options given are 5 dash 3 dash 3 dash 5 dash, both of these, none of these. So 5 dash 3 dash 3 dash 5 dash, C is both of these, मतलब both A and B, and option D is none of these. So this we have already discussed during transcription process that mRNA is synthesized from DNA by a process called transcription. For example, suppose this is a DNA strand and this DNA strand is used, this DNA is used for synthesis of mRNA. So if this is 3 dash 5 dash 3 dash 5 dash strand और ये होगा 5 dash 3 dash strand, तो इसका जो भी ओपन एंड होगा the open end will always 5 dash. इसका ओपन एंड ऑलवेज क्या होगा? ऐसा अगर इसको ओपन करेंगे हम तो ये 5 डैश होगा ऑलवेज और ये जो होगा ये 3 डैश होगा. ठीक है, तो उसी तरह से जो स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो इसकी पोलैरिटी हम इस तरह से लिखेंगे 5 डैश और इसको लिख देते हैं 3 डैश. ठीक है, तो इसको उल्टा कर देते हैं. ठीक है, ऊपर का स्ट्रैंड हम टेम्पलेट स्ट्रैंड लेंगे. तो ये 5 डैश है, तो यहाँ पर ये 3 डैश है. यहाँ से 3 डैश स्टार्ट हुआ तो ये 5 डैश है. ठीक है, इसको अगर यहाँ से कट करता हूँ मैं, एक स्पेसिफिक पार्ट ले लेता हूँ, इसको इस तरह से कट करके एक स्पेसिफिक पार्ट अगर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 डैश. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3 डैश, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 डैश. और इस पे अगर प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड. क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड. इससे पहले तो एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से. जब एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर बाइंड करेगा और यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होगा. तो जब सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो ये 3 डैश एंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? 5 डैश. और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये 5 डैश है, तो यहाँ पर क्या होगा? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगा 3 डैश. So the direction of synthesis of mRNA is always 5 dash to 3 dash. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई बेस है, जैसे कि A C G T इस तरह से सीक्वेंस है, तो यहाँ पर ये होगा A के अपोजिट में U, C के अपोजिट में G, G के अपोजिट में C और यहाँ पर जो T है उसके अपोजिट में A. बट डायरेक्शन क्या है? 5 dash to 3 dash. So 5 dash to 3 dash is the direction of mRNA synthesis on DNA. ट्रांसक्रिप्शन का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज 5 dash to 3 dash होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 5 dash 3 dash. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.
Question number 5 is DNA replication takes place at the phase of the cell cycle. DNA replication takes place at the phase of cell cycle. The phase of सेल साइकिल. अब ये सेल साइकिल का क्वेश्चन आ गया है, इसमें डीएनए से रिलेटेड है इसलिए इसमें आ गया है. डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट द फेज ऑफ सेल साइकिल. कौन सी फेज होती है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो इसको हमने स्टडी कर लिया है. ऑप्शंस गिवन आर G1S G2M. ठीक है, तो G1S G2 एंड M फेज. करेक्ट ऑप्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन. हमें पता है सिंथेसिस जो होता है वो एस फेज में होता है. सो एस फेज इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, एस फेज. क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which RNA it carries the amino acids from amino acid pool to mRNA. Which RNA carries amino acid from amino acid pool to mRNA. mRNA पे कौन लेके जाता है अमीनो एसिड्स को? ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब कौन लेके जाता है आरएन? वो कौन सा आरएनए होता है जो अमीनो एसिड को कैरी करता है? कैरियर कौन सा आरएनए होता है जो अमीनो एसिड को कैरी करता है? जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एमआरएनए सिंथेसिस का. एमआरएनए बनने के बाद जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उस ट्रांसलेशन प्रोसेस में जो कैरियर आरएनए जो होता है, जो अमीनो एसिड को कैरी करता है, साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड है उसको कैरी करता है एमआरएनए के लोकेशन पे. एमआरएनए पे जाके उसको डोनेट, वो वहां पर उसको भेज देता है. ठीक है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो वो जो आरएनए होता है वो होता है टीआरएनए. उसको ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है. ठीक, तो ऑप्शंस आर आरआरएनए, mRNA, tRNA and hnRNA. So rRNA, tRNA, mRNA and D is hnRNA. तो इसमें से कौन सा आरएनए होता है जो ट्रांसफर करता है? तो डेफिनेटली इट इज ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है और उसको कहाँ पर भेज देता है? टी, वो उसको भेज देता है ये टीआरएनए, उसको भेज देता है ये, सपोज यहाँ पर अमीनो एसिड है, तो इसको कहाँ पर कैरी करता है? ये एमआरएनए पे कैरी करता है. क्वेश्चन में पूछा गया है विच आरएनए कैरीज अमीनो एसिड फ्रॉम अमीनो एसिड पूल. इसका मतलब साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड पूल है वहां से एमआरएनए की तरफ. ये एमआरएनए. ठीक है, तो एमआरएनए की तरफ किसने लाया है? ये टीआरएनए ने अमीनो एसिड को कैरी किया है. ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस. The correct option is tRNA is the correct option. Next question, question number 7. Question number 7 is phosphate groups has. phosphate group में क्या प्रेजेंट होता है? phosphate group it has. So options given are 3 active OH groups, 3 active NH2 groups, 3 active
OH groups. Second option is 3 active NH2 groups. Option C given is 3 active acid groups, 3 active acid COOH groups, and 3 active CO2 groups. CO2 groups. 3 एक्टिव CO2 ऑप्शंस दिए गए हैं। फॉस्फेट जो होता है इट इज H3PO4। स्ट्रक्चर अगर हम निकालेंगे तो फॉस्फेट है, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर होता है एंड हाइड्रोजन्स आर प्लेस्ड लाइक, सो इट हैज 3 एक्टिव OH ग्रुप्स, ठीक है, इसमें भी लोन पेयर्स होते हैं। 3 active OH groups are present. Active OH groups are present on the structure of phosphate. Phosphate पे 3 active OH group present होते हैं. This structure is responsible for helical structure in DNA. DNA में जो helical structure है वो इसी वजह से होता है, ठीक है, phosphate की ऊपर होने वाले lone pairs की वजह से। So correct option is 3 active OH groups are present. 1, 2, 3. 3 active OH groups are present on the phosphate. Next question. Question number. Next question is question number 8. Next question is question number 8. Question is, as compared to DNA pentose sugar, the RNA pentose sugar has, as compared to the DNA pentose sugar, RNA pentose sugar has, DNA pentose sugar जो है उसके कंपैरिजन में RNA pentose sugar में क्या होता है, ठीक है। So we know that DNA pentose sugar is deoxyribose sugar, deoxyribose sugar, and RNA pentose sugar is ribose sugar। क्या होता है ये? राइबोज शुगर होता है, ठीक है। So options given are 1 carbon atom less, एक कार्बन एटम लेस होता है क्या? तो कार्बन का कोई इश्यू नहीं है, दोनों भी पेंटोज शुगर है, इसका मतलब 5 कार्बन दोनों में भी होते हैं। नेक्स्ट, 1 नाइट्रोजन बेस मोर, 1 नाइट्रोजन बेस मोर, एक नाइट्रोजन बेस इसमें ज्यादा होता है क्या आरएनए में? डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द रिंग, different position of oxygen atoms in the ring, oxygen atom in ring, and option D given is 1 oxygen atom more, 1 oxygen atom more। तो नाम से ही पता चलता है ये डीऑक्सी है और ये राइबोज शुगर, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ठीक है। So ribose sugar has 1 more oxygen than deoxyribose sugar, ठीक है। राइबोज शुगर में डीऑक्सी राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा होता है। डीएनए में एक कम होता है, इसीलिए तो उसका नाम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहा गया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 ऑक्सीजन एटम मोर इन आरएनए। आरएनए में एक ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। So for question number A, correct option is option D.
Next question, question number 9. Question number 9 is, how many types of grooves are present in DNA helix? Question number 9. How many types of grooves present in डीएनए हेलिक्स? डीएनए हेलिक्स में कितने ग्रूव्स होते हैं? जैसे आपने इससे पहले पढ़ा है कि उसमें माइनर और मेजर ग्रूव होते हैं, ठीक है। एक माइनर ग्रूव होता है और एक मेजर ग्रूव होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक माइनर ग्रूव होता है और एक क्या होता है, मेजर ग्रूव होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रूव्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक माइनर और दूसरा होता है मेजर। ऑप्शंस आर 1 2 3 4। 1, बी ऑप्शन इज 2, 3 एंड, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर, हाँ, कितने ग्रूव्स होते हैं? तो वो 2 होते हैं। अब 2 कैसे होते हैं? तो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसमें क्या दिखाई देगा, कुछ ग्रूव्स दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो ग्रूव्स है, जो ग्रूव्स बने हैं, ठीक है, ये बाहर वाला एक ग्रूव है और ये अंदर वाला ग्रूव है। So this outer groove is called as major groove. इनर ग्रूव जो होता है इसको कहा जाता है माइनर ग्रूव। तो 2 ग्रूव बनते हैं, आउट मेजर ग्रूव बनता है एक और एक बनता है माइनर ग्रूव। तो 2 ग्रूव्स होते हैं, एक होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। तो डीएनए में कितने ग्रूव्स होते हैं? 2 ग्रूव्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is, the nucleosomes in chromatin appear as, the nucleosomes appear in chromatin, in chromatin appear as, न्यूक्लियोसोम कहां पर होते हैं? क्रोमैटिन में। इन क्रोमैटिन appears as, कैसे दिखते हैं न्यूक्लियोसोम? तो न्यूक्लियोसोम होता क्या है ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम का मतलब होता है कि सपोज ये हिस्टोन प्रोटीन से और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या हो रहा है, डीएनए रैप हुआ है। तो डीएनए जब रैप होगा तो कुछ इस तरह से ये डीएनए हमें दिखाई देगा और ये रैप्ड डीएनए है। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट हिस्टोन है, इसको भी इस तरह से रैप होके, ये इस तरह से रैप होके स्ट्रक्चर बनाता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है और इसके बीच में ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन इट अपीयर्स एज, अभी किस तरह से दिखाई देता है? तो ये किस तरह से दिखाई देता है? इट लुक्स लाइक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। देयर इज अ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग हैज लाइक दिस बीड्स। बीड्स है, इस तरह से एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में बीच में नॉट्स है, बीड्स है। So it looks like beads on the strings. Options given are beads on coil, beads on string, beads on coil, beads on string. Option C is ridges and furrow, ridges and furrow, ठीक है। ऑप्शन डी इज नन ऑफ above, नन ऑफ above, इसमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इट इज अ स्ट्रक्चर लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर इज लाइक बीड्स on this DNA string. The correct option is option B. Nucleosome structure, it looks like beads on string. It is a chromatin structure which is present, or it looks like beads on string. Clear hai? Next question. Question number 11. Question number 11 is a loosely packed and transcriptionally active part of chromatin is a loosely packed and transcriptionally active part of DNA. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इजीली हो रहा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। ऐसा डीएनए का जो पार्ट होता है जो कि लूजली पैक्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो डीएनए में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेंसली पैक्ड और एक होता है लूजली पैक्ड। डेंसली पैक्ड जो रीजन होता है वो डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है और वो डार्क स्टेन होता है जिसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। लूजली पैक्ड जो पार्ट होता है जो कि ज्यादा एक्टिव होता है और वो कम स्टेन लेता है, यानी वो लाइट स्टेन लेता है, लाइटली स्टेन होता है अगर उसको हम कलर करेंगे तो। ऐसे पार्ट को हम एक्टिव पार्ट कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट कहते हैं, उसको कहा जाता है यूक्रोमैटिन। तो दो पार्ट होते हैं, एक हेटेरोक्रोमैटिन जो कि कम एक्टिव होता है और डार्क होता है, डेंसली पैक्ड होता है। दूसरा होता है यूक्रोमैटिन जो कि लूजली पैक्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और वो लाइट स्टेन होता है। ठीक है, सो ऑप्शंस गिवन आर हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, C is NHC, and option D is solenoid fiber. solenoid fiber. ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन मैंने आपको कहा कि वो लूजली पैक्ड नहीं होता, ये डेंसली पैक्ड पार्ट होता है, डेंसली पैक्ड होता है। ऑप्शन ये तो नहीं आएगा। यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, it takes less stain, that means it is light in staining। ठीक है, वो स्टेन होता है बट लाइटली होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है जो ट्रांसक्रिप्शन इजीली कर पाता है। सो दिस इज यूक्रोमैटिन, ऑप्शन इज यूक्रोमैटिन। NHC नॉन हिस्टोकम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। सोलेनाइड फाइबर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सोलेनाइड की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। mRNA, rRNA एंड tRNA आर, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। mRNA, tRNA, rRNA आर ए जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए? जेनेटिक आरएनए है ये, नॉन जेनेटिक आरएनए है ये। सी बोथ ए एंड बी, दोनों भी है। एंड डी इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, इन ऑल वायरसेस, नॉट सेल्स, प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। So mRNA, tRNA and rRNA, these are non-genetic RNAs.
इनको हम नॉन जेनेटिक आरएनए कहते हैं क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं बनाते हैं. इट इज नॉट फाउंड इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल में जो आरएनए होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस आरएनए. These are non-genetic RNA. Genetic RNA is different. It is single-stranded RNA. Genetic RNA is single-stranded RNA, but it acts as a genetic material. That means it controls the functioning of the cell. तो वो जेनेटिक आरएनए होता है. ठीक है, वो वायरसेस में होता है. जेनेटिक आरएनए कैन बी फाउंड इन वायरसेस. आरएनए वायरसेस होते हैं ना, उसमें जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट होता है. सो दीज आरएनए, these are not genetic RNA, they are non-genetic RNA. ठीक है, so ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस, so it is also a false statement because viruses are of two types on the basis of genetic material, DNA viruses and RNA viruses. तो all viruses में तो नहीं प्रेजेंट होगा. ठीक है, mRNA, tRNA, rRNA जो है वो ऑल वायरसेस में इस आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, डीएनए भी होता है. दूसरी चीज ये है कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए जो है वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज वायरसेस आर असेल्युलर मटेरियल्स. पैरासाइट का एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए यूज करते हैं, उनका खुद का आरएनए नहीं होता है, ये नॉन जेनेटिक आरएनए. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉन जेनेटिक आरएनए. All these are non-genetic RNAs which are present normally in the cytoplasm of the cell. Cell के cytoplasm में normally ये RNAs present होते हैं. So these are some questions which are related to the heredity and variations. नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे जिससे कि और ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन, इससे रिलेटेड जो पोर्शन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर हम कवर करने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व. ओके, थैंक यू.